गया? ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट. टुडे we are going to discuss your class 12th history. The question what we read today, that the rise of Magad. Rise of Magad. Rise of Magad, it means what we are going to read. We are going to read that during 6th century BC, during 6th century BC, there were 16 Mahajanpad. I hope you are all aware of that. The 16 Mahajanpad. Magad was one of among of them. Okay, during 6th century BC, Magad Mahajanpad, it was also the important part of the 16 Mahajanpad. But here the question arises that during that time 16 Mahajanpad. But Magad, why Magad rise? Why the development of Magad? क्यों हुआ डेवलपमेंट मगध का? क्या कारण थे? What was the reason behind that the development of Magad? किसकी तुलना में comparison than other Mahajanpad? So if you will read your book, chapter 2, where they clearly explained by author that कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी मगध के डेवलपमेंट के लिए. I hope you have remember where I have told you in your previous class that कि जो प्रॉब्लम्स थे अदर के लिए उसको मगध ने अपने लिए क्या बना लिया? बेनिफिट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया. इफ यू विल सी मगध, इट मींस द कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्र. राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र nowadays we call Patliputra Patna. If you see the map of India, I could see, suppose in the map where situated Patliputra? Here. That was the route where what? That was the river routes. ये गंगा के उन मार्गों पे स्थित है जो गंगा अपने बहाव के साथ, आई मीन टू से कि ये गंगा के द्वारा बनाए गए जो सिल्ट जमाव है उनके ऊपर पाटलिपुत्र का डेवलपमेंट हुआ. अब इनको ऐसे समझिए कि पाटलिपुत्र फर्स्ट टाइम अजातशत्रु who was king of Magad, Magad, after the death of his father Bimbisar, he felt that the Patliputra, it would be better for किसके जो इसके पहले की राजधानी थी. मगध की जो इसके पूर्व की राजधानी थी वो थी गिरिभद्र और राजगीर. इनकी तुलना में अजातशत्रु पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र
के इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन पाटलिपुत्रा को कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश करने का श्रेय दिया जाता है शिशुनाग। शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा को मगध की कैपिटल बनाई। अब ये भी एक रीजन था राइज ऑफ मगध। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। आई मीन टू से दैट you will try to understand the other way on the basis of that you can easily understand that why Magad became powerful during 6th century BC. We are going to discuss the condition of the Magad. Okay. Magad रीजन, मगध की डेवलप होने के जो रीजन्स थे उनको हम क्लियरली एग्जामिन करने के लिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दें। कौन कौन से पॉइंट्स? पॉइंट इज दैट द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ मगध। First, second, the economical condition. Magad. Third, social condition. Fourth, religious or cultural condition. Fifth, others. Dear student, if we mindfully observe about that points, the geographical condition of Magad, the economical condition of Magad, social condition of Magad, religious and cultural condition of Magad and others. These points, with the help of that, we can easily prove that why Magad became most powerful kingdom, most powerful empire, most powerful Mahajanpad during 6th century BC. So first we have to focus the geographical condition of Magad. Geographical condition of Magad को हम देखेंगे तो geographical condition of Magad को हम देखेंगे तो first we are going to discuss about, okay dear students, we are going to focus that points, geographical condition. What was available during that time in Magad? First, forest. Forest, it means with the help of forest, what things the Magad's peoples they can gain, क्या प्राप्त कर सकते थे? Forest से forest good, forest goods. Second, goods like wood, wax, etc. Second, animal, elephant, elephant was, as you know, there is no need to explain that elephant was a very powerful animal and he was used during that time as a tank. Elephant, it was in huge amount of the forest of पाटलिपुत्रा. they can what, यहाँ से वो हाथियों को पकड़ के अपने लेने का यूज करते थे. फिर geographical conditions, the various
mountain range. Rivers were available. Nowadays also it is available in that area, Ganga. And dear student, if you will see the map of the Bihar, I mean to say that the old Bihar, when the Jharkhand and Bihar merged, I mean to say that they were one state. The Jharkhand was the prosperous in the minerals. There were the various mines, coal mines, iron mines. It was depositing a huge amount in that area. That was controlled. That was in the controlling of Magadh. Rivers, the Ganga, it provides not only the irrigation facility. Their water is provide not only the irrigation facility, but also it provide the transportation, the cheap mode of transportation, according to Chanakya, I mean to say that Vishnugupta, I mean to say that Kautilya, that the river route or sea route, that is the cheapest mode of transportation. Everyone uses that, but in that there are so many, क्या इसमें बहुत सारी क्या है, ऐसी संभावना है जिससे कि नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है. लेकिन ये रूट सबसे अच्छा है दोनों पर्पज से. If you use the land route, then it may be possible that you are looted by dacoits or you are looted by the such type of mischief. आप इस तरह के लोगों के द्वारा लूट लिए जाएंगे, व्यापारियों का नुकसान होगा. But whenever you will use the river routes or sea route, it would be better for you. And there were the guilds, there were the Sartwar, there was the various type of the traders. They uses that routes. This was not a new routes. This was, I mean to say that river route not only used during, I mean to say that in 6th century BC. I hope you remember my first class where I told you, where I taught you the Indus Valley civilization. In that chapter, I told you about the external trade and internal trade. Internal trade, it was both river routes and land routes, but the external trade, it was totally depend on sea routes, the water. कैसे हो जाते थे? बड़े बड़े जहाज़ों के साथ वो बड़े बड़े देशों के अब्रॉड कंट्री से कनेक्टेड होते थे. We in the Indus Valley civilization, the various sites that was excavated, and we have various evidence. We have that we can say that the Indus Valley civilization people, they were uses the big ships, lothals, a sail on the seal of the Indus Valley civilization, which collected where लोथल से एक सील मिली जिसपे बड़े नाव की आकृति बनी हुई. ये लोग दिलमुन, ये लोग मगन, ये लोग इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेर, ऐसे तमाम सारे देशों के साथ कनेक्टेड थे. तो इट मीन्स दैट फैसिलिटीज अवेलेबल इन मगध आल्सो. ये तो दो पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट, रिवर नॉट ओनली रिवर प्रोवाइडेड नॉट ओनली द cheap mode of transportation, cheap mode of transportation, but also better irrigation facility, better irrigation facility, and similarly, if you will try to understand कि ये स्ट्रेटेजिकल वे से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि गंगा क्या बनाती थी? एक बाउंड्री बनाती थी, सीमा बनाती थी. किसके साथ? वैशाली के लिच्छवियों के साथ. वैशाली, दैट द गंगा रिवर, दैट वाज बाउंड्री ऑफ दैट, दोनों के बीच की एक स्टेट, नैरो स्टेट के रूप में गंगा दोनों की बाउंड्री बनाती थी. पाटलिपुत्र चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था. सिक्योरिटी, नेचुरल सिक्योरिटी. सिमिलरली द इंडिया इज कवर्ड इन द साउदर्न पार्ट, किससे? हिमालय से घिरा हुआ है. तो हिमालय क्या दे रहा है? उसको प्रोटेक्शन दे रहा है दोनों तरीकों से, शत्रुओं से भी फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पस एंड द ज्योग्राफिकल पर्पस, कि
बाहर से आने वाली नॉर्थ इससे आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती, भारत का इलाका प्लेन का काफ़ी फर्टाइल बना रहता है। आई होप यू हैड रीड दिस पॉइंट्स इन योर एसएसटी क्लास 6, 7, 8, कहीं आपने इसको जरूर पढ़ा। दिस इज द what the specific condition of Magad, only this condition for Magad, so that's why Magad become very powerful. Rise of Magad, the one reason is very important. Okay, let us come and discuss the next point. Next point is, I hope you know about that next point. हमने जिसके बारे में बात की, अगला पॉइंट है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट okay, this is the very important things. Everyone knows that without money, without economy, no one can develop, no one can improve their condition. कोई भी अपनी स्थिति को तब तक अच्छा नहीं कर सकता जब तक उसके पास क्या ना हो, उसके पास मनी या इस तरह की प्रीशियस मेटल्स या इस तरह की चीजें ना हो। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र सर्वे गुणा कांचनाम आश्रयंती, इट मीन्स सारे गुण कहाँ आश्रित होते हैं, धन के ऊपर आश्रित होते हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज मैटर दैट सपोज यू हैव मनी, सपोज यू हैव ए लॉट ऑफ मनी, देन एवरीवन पे अटेंशन, क्या आपके प्रति लोगों का अटेंशन बढ़ जाएगा, आपके प्रति लोगों की जो सम्मान है, लोगों की निगाह में वो बढ़ जाएगी। बट यू हैव नो मनी, इवन यू आर मोर इंटेलेक्चुअल, बट पीपुल इग्नोर यू। आई होप यू कैन रियलाइज, आप इसको रियलाइज किए होंगे, यू विल रियलाइज दैट आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू व्हाट डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिकल रीजन, नॉट डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल रीजन। आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजन। अब यहां पे कई सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आप कनेक्ट करेंगे किससे, क्योंकि पाटलिपुत्र कहां था, पाटलिपुत्र दो नदियों के द्वार पे, कौन कौन, गंगा एंड सोन रिवर, गंगा रिवर और सोन रिवर के दुआबे पे बना था। What I want to tell you that the गंगा और सोन के दुआबा, it means that land कैसा होगा, वेरी फर्टाइल है, फर्टाइल लैंड होगा। क्योंकि ये नदियों से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, वाटर की, वाटर फैसिलिटी। दूसरी क्या अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। तीसरी ड्रिंकिंग वाटर। और एक और जिसकी मैंने बात की स्ट्रेटेजिकल पर्पज से, ये इंपॉर्टेंट रहा। तो ये वो कारण था जिससे एक चीज क्लियर हुआ, इन फर्टाइल लैंड से क्या मिला होगा, सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन किस चीज का, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर का तो इसके साथ ही कई सारे अदर ग्रुप्स कनेक्टेड होते चले जाएंगे। कौन कौन से ग्रुप कनेक्ट होंगे, जैसे एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन होगा, इसके साथ
एक वर्ग आर्टिसियन का डेवलपमेंट होगा, एक वर्ग आएगा आर्टिसियन जो फार्मिंग में अपने को इन्वॉल्व नहीं करता, इसका इन्वॉल्वमेंट किधर है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कौन से गुड्स, तो तमाम सारे गुड्स, जो चीज मार्केट में बिकती है, जो चीजें मार्केट के लिए जाती है, तो वो सारी चीजें तभी बनेंगी जब एक ऐसा वर्ग जो खाली हो, खाली इन द सेंस कि वो फार्मिंग में इन्वॉल्व ना हो, वो कहीं फैक्ट्रियों में काम करे और उसे खाने के लिए प्रॉपर चीजें प्रॉपर क्या होती रहे, विदाउट एनी हिंड्रेंस वहाँ पहुँचती रहे। तो ये दो चीजें एक साथ कनेक्टेड थी और ये होना जरूरी, ये हो रही थी। और जब ये तभी होगा जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तभी इस वर्ग को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाना। आई मीन टू से दैट विदाउट सरप्लस प्रोडक्शन हाउ कैन इट पॉसिबल दैट द आर्टिसियंस they have fulfilled their needs, the necessary needs like food. Okay, second point, surplus production, agriculture, markets. एक ऐसा प्लेस चाहिए अब किसको, बिग पिजेंट्स को, जो क्या है बिग पिजेंट्स, जिनको अपना अनाज, अपना जो वो उसके क्रॉप्स हैं, ग्रेन है, उनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। मार्केट कहाँ आएगा, वो एक मार्केट की एक प्लेस, आई मीन टू से मार्केट, व्हाट डू मीन मार्केट, मार्केट इट मीन्स द पर्टिकुलर प्लेस वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू एक्सचेंज और हु वांट टू सेल और परचेज देयर गुड्स, अपने सामानों को बेचे, खरीदे, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग पहुंच सके। दैट प्लेस ग्रेजुअली डेवलप इन द मार्केट। अब मार्केट अगर डेवलप हुई तो मार्केट डेवलप होंगे तो इनके साथ एक वर्ग आएगा, वो आएगा ट्रेडर्स। मार्केट जैसे ही डेवलप होगा उनके साथ एक वर्ग जुड़ जाएगा ट्रेडर्स, और फिर जैसे ट्रेडर्स आएंगे तो ये अपने वस्तुओं को रखने के लिए, सामानों को रखने के लिए गोडाउन्स का निर्माण करेंगे, साथ ही ट्रेडर्स ग्रेनरी बनवाएंगे और साथ ही साथ कुछ रेजिडेंस, और जैसे रेजिडेंस होगा तो इनकी सिक्योरिटी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर काम करेगा। Administrative center, why? Because they want tax. सारा खेल पैसे का। I mean to say that everyone want money. Center, when that type of situation create by any way, किसी भी तरीके से, center what? Appointed their officials, go and observe them, impose them the excess taxes. Why? Because they earn many more money. So हमारा जो हिस्सा है उनसे लीजिए, और फिर यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होगा, और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, और एक किस रूप में बदल जाएगा, एक बड़े ट्रेडिंग हब के रूप में। ये तो हुआ ट्रेड का। अब इसी को एग्रीकल्चर से समझते हैं। अब मैंने आपको इकोनॉमी में दो चीजों से जोड़ा, एक मैंने ट्रेड से जोड़ा और अब आपको दूसरे से मैं जोड़ रहा हूं एग्रीकल्चर। इनसे मैंने क्या किया, मैंने कहा व्हेन आयरन वाज introduced the agriculture equipments
एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मेड फ्रॉम देम लाइक क्या, लाइक आप समझ सकते हैं, हो, एक्स. Okay, when iron was introduced, the agriculture equipments made from them like reaping or sickle, axe, hoe, hammer, and such type of others. The iron played a very important role in the development of the Mahajanpad. Not only Magad, but also Avanti, but also others. Magad had the mines of iron, as like Avanti. If you will read the history, then you can easily understand that Avanti and Magad, they not fight against each other during Ajasatru and Bimbisar reign. Their regime both what? Silent. Both gave respect, एक दूसरे का उन्होंने सम्मान किया. Why? Because both understand that he was most powerful than us, and who thought that he was most powerful than us. Why? Because they both have the irons. ये iron की कारण ही उनके पास था, और ये iron, it was not only used in agriculture sector, it also used in the where the military sectors. It means the कहाँ पे, जहाँ पे सिक्योरिटी का बात. There were various type of equipments which was made by iron. क्या क्या कौन कौन से, अगर हम उससे देखें तो उससे कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगे आपको? आर्मर, नाइफ्स, डैगर, सोर्ड, ये सारी चीजें, साथ साथ फोर्टिफिकेशन. But we are discussing here the importance of agriculture. So try to understand what I am telling you. With the help of iron, the plug fields, खेतों की जुताई हुई, गहरी जुताई, डिगिंग उसकी ज़्यादा हुई. तो जब गहरी जुताई होगी, लोहे के फाल लगे हलों का प्रयोग होगा, और लैंड क्या है? फर्टाइल है, दुआबा है. गंगा और सोन के नदियों के बने हुए एक फर्टाइल लैंड पे ये क्षेत्र है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन तो होगा ही होगा. अब एग्रीकल्चर से सरप्लस प्रोडक्शन के लिए ये सारी दशाएं महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं. तो ये तो हुआ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. इसके साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो सोशल रिफॉर्मर है, लाइक महात्मा बुद्ध, लाइक महावीर स्वामी, स्पेशली महात्मा बुद्ध, they permitted the traders, I mean to say that the group, the one who involved himself in trading, they called Vaisya. So महात्मा बुद्ध permitted है कुसीद. कुसीद का मतलब क्या हुआ? ब्याज पे पैसे लेना और ब्याज पे पैसे देना. That is कुसीद. कुसीदर वर्ड that was used in Satya Brahman. ये वर्ड, ये परमिट किया किसने? गौतम बुद्ध ने इन चीजों को. साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज थी, इस क्या? बियॉन्ड सी ट्रेड not accepted by the Brahmanical religion, but the Buddhist religion, according to Buddhist, traders have right to cross the sea and what? Involve himself in the abroad trade. विदेशी ट्रेड से वो जुड़ सकते थे, फॉरेन ट्रेड से वो जुड़ सकते थे, और वो समुद्र को क्रॉस कर सकते थे. तो यहाँ पे कई सारे रीजन्स एक साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है. ये तो हुआ इकोनॉमिकल. थर्ड बात करते हैं, थर्ड रीजन पे, वो है आपका सोशल
रीजन। सोशलिज्म क्या है, सामाजिककरण क्या है, आइए देखते हैं। लेट अस कम एंड डिस्कस दैट द सोशलिज्म, हाउ कैन इट हेल्प टू द राइज ऑफ मगर सोशल सोशलिज्म प्लस रिलीजियस दोनों को एक साथ कनेक्ट करके हम यहां देखेंगे। सोशल में क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल रिलीजन देयर वर 4 वर्ण, देयर वर 4 वर्ण, देयर वर्क their work was decided. No one changed their occupation. During 6th century BC. ओके, एक चीज के लिए, बट रिलीजियस सेक्टर लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, चारवाक, EDC or Charvak like 63 other sect who denied the Varna system, caste system, extreme practices, sacrifices, or such type of other rituals. I hope you are getting what I am telling with you, my dear students. अब आप इसको दो तरीके से समझिए। सोशल, there are the various caste and the 4 word, but the religious like Buddhism, Jainism, they denied and they not accepted what Brahmanical texts impose on society. So that's why huge amount of the society क्या हुए interact with them. Okay, so I hope on that you can say that why the Magar become. One more which is very important is I want to explain with you the political reason, because without it, political reason, the powerful kings, they were more able than others. These are also the reason in the rise of Mughal. I hope you are getting on that. You can easily explain all the topics. Goodbye and take care.